Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are safe and fine in this pandemic by the grace of Allah Azza wa Jal. Today we are going to start our term 2 subject English, lesson number 1, and the name of the topic is Mr. Willy Wonka. Okay, this is our lesson number 1 of term 2 and the name of the topic is Mr. Willy Wonka. This is our first chapter of this term. Okay students, open your book, page number 120. Now students, open your book, page number 120. And as I told you, name of the chapter is Mr. Willy Wonka. Okay, let's start. Read this chapter thoroughly. Mr. Wonka was standing all alone just inside the open gates of the factory. And what an extraordinary little man he was. He had a black top hat on his head. He wore a tailcoat made of a beautiful plum-colored velvet. His trousers were bottle green. His gloves were pearly grey. And in one hand he carried a fine gold-topped walking cane. Means Mr. Wonka was standing all alone. अकेले खड़े हुए थे just inside the open gate of the factory. As you see in this picture, he is the man. His name is Mr. Wonka. He is standing alone just inside the open gate of the factory. And what an extraordinary little man he was. He had a black top on his head. Okay, he has a black top on his head. He wore a tail coat made up of beautiful plum colored velvet, and he wore a beautiful plum colored velvet coat. His trousers were bottle green, and he wore a trouser which color is bottle green. His gloves were pearly grey, and the color of his gloves are pearly grey. And in one hand he carried a fine gold-topped walking cane. और उनके एक हाथ में एक बहुत ही फाइन गोल्ड टॉप्ड जिस पे गोल्ड टॉपिंग थी वॉकिंग केन किसे कहते हैं, स्टिक को. एक बहुत ही फाइन गोल्ड टॉप वॉकिंग स्टिक थी उनके हाथ में. ओके, now come to the topic. Covering his chin there was a small, neat, pointed black beard, a goatee, and his eyes were most marvelously bright. They seemed to be sparkling and twinkling at you all the time. The whole face, in fact, was alight with fun and laughter. It means उनकी जो chin थी, the chin is covered with a small, छोटी सी neat pointed black beard. Beard किसे कहते हैं, दाढ़ी को. उनकी chin पे एक छोटी सी neat सी pointed black beard थी. And his eyes were most marvelously bright, and he has bright black eyes. They seem to be sparkling and twinkling. और ऐसा लग रहा था कि उनकी आईज जो है वो स्पार्क कर रही हैं, ट्विंकलिंग कर रही हैं, चमक रही हैं. He was like a squirrel in the quickness of his movement. और वो बहुत ज़्यादा क्विक थे, बहुत ज़्यादा फास्ट थे, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सनैलिटी थी उनकी. और he moved quickly
जस्ट लाइक का किस तरह से इसको मिलाया गया है, एज ए स्क्वायरल। जिस तरह के स्क्वायरल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा क्विकली होती है, तो मिस्टर वोंका भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जस्ट लाइक अ स्क्वायरल जो है वो मूव करते थे। ओके, लाइक अ क्विक क्लेवर स्क्वायरल फ्रॉम द पार्क। जैसे कि कोई पार्क में कोई ट्री पे स्क्वायरल जो है वो क्विकली मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, मिस्टर वोंका इज़ जस्ट लाइक moving just like a squirrel. He is a very active man, a very active personality. Okay, now come and oh how clever he looked, और कितने समझदार वो दिख रहे थे। how quick and sharp and full of life, और कितने ज़्यादा वो क्विक थे, बहुत ज़्यादा शार्प और एक full of life, full of energetic थे बहुत ज़्यादा। he kept making quickly jerky little movements with his head, cocking it this way and that, and taking everything it with those bright twinkling eyes. He was like a squirrel in the quickness of his movement, like a quick clever old squirrel from the park. Okay, as I told you, बहुत ज़्यादा वो जो है शार्प थे, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ थे, उनके जो मूवमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट थे, एज क्विक एज अ स्क्विरल। ओके, बहुत ज़्यादा ही हैज़ अ वेरी एक्टिव पर्सनैलिटी। नाउ सडनली, अचानक से, ही डिड अ फनी लिटिल स्किपिंग डांस इन द स्नो। अचानक से उन्होंने क्या किया, फनी लिटिल थोड़ा सा स्किपिंग डांस करना शुरू कर दिया इन द स्नो यानी कि बर्फ़ में। एंड ही स्प्रेड हिज आर्म्स वाइड, और उन्होंने अपने हाथों को फैलाया, अपने आर्म्स को। एंड ही स्माइल्ड एट द 5 चिल्ड्रन, और 5 बच्चों को देख के उन्होंने क्या किया, यस, उन्होंने स्माइल किया। हु वर क्लस्टर्ड नियर द गेट, जो कि क्लस्टर्ड यानी कि जमा हो गए थे, कहाँ पर, गेट के पास। एंड ही कॉल्ड आउट, और फिर उन्होंने उन बच्चों को आवाज़ दी, वेलकम माई लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैक्ट्री। क्या कहा उन्होंने उनको वेलकम किया, अपने फ्रेंड्स को उन्होंने कहा, वेलकम माय लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैक्ट्री। फैक्ट्री पर आने के पर उन्हें वेलकम, बहुत अच्छा, हार्टली, बहुत अच्छा उन्हें वेलकम दिया। हिज वॉइस वॉज हाई एंड फ्लूटी, उनका जो वॉइस था वो थोड़ा हाई था लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा रिदमेटिकली था, बहुत अच्छे टोन में उन्होंने उन बच्चों को वेलकम किया। विल यू कम फॉरवर्ड वन एट अ टाइम प्लीज़, क्या आप एक एक करके आएंगे, उन्होंने रिक्वेस्ट की। ही कॉल्ड आउट एंड ब्रिंग योर पेरेंट्स, देन शो मी योर गोल्डन टिकट एंड गिव मी योर नेम हुज फर्स्ट। फिर उन्होंने उनसे कहा कि जब आप आएंगे तो यू हैव टू शो मी योर गोल्डन टिकट एंड गिव मी योर नेम हुज फर्स्ट, और आते ही आपने अपना टिकट शो करना है और अपने सबसे पहले नाम बताना है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको अच्छी तरह से ये वाला पेज समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू पेज नंबर 121. Now come to page number 121. Now page number 121, we will continue with page number 121. A large boy stepped up. एक लार्ज बॉय, बड़ा लड़का आगे की तरफ आया। I am Augustus Gloop, he said, और उसने अपना नाम बताया कि I am Augustus Gloop. Augustus cried Mr. Wonka. Mr. Wonka ने अच्छा कहा, ओह ओके, उसे ओके योर नेम इज़ Augustus. Seizing his hand and pumping it up and down with terrific force, और फिर दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सीजिंग हिज हैंड, हाथ मिलाया और उन्होंने उसका हाथ अप एंड डाउन मूव किया। माय डियर बॉय हाउ गुड टू सी यू, उन्होंने उसे कहा कि तो आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। डिलाइटेड, चार्म्ड, ओवरजॉयड टू हैव यू विद अस, और मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ।
एंड दीज आर योर पेरेंट्स, और फिर उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, क्या पूछा, एंड दीज आर योर पेरेंट्स, हाउ नाइस, कम इन, दैट्स राइट, स्टेप थ्रू द गेट, और फिर उन्हें वेलकम करते हुए पूछा कि कम इन, बहुत अच्छी बात है ये, वो उन्हें वार्म वेलकम दिया और उन्हें अंदर आने की परमिशन दी। मिस्टर वोंका वॉज क्लियरली जस्ट एज एक्साइटेड एज एवरीबडी एल्स, मिस्टर वोंका भी दूसरों की तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे। माई नेम सेट द नेक्स्ट चाइल्ड टू गो फॉरवर्ड, जब नेक्स्ट चाइल्ड जो है वो आगे की तरफ आया तो उसने अपना नाम बताया, और क्या नाम था उसका बच्चों, उसका नाम था इज़ वरूका सॉल्ट, उसका नाम था वरूका सॉल्ट। माई डियर वरूका, हाउ डू यू डू, मिस्टर वोंका ने उससे सवाल किया, माई डियर वरूका हाउ डू यू डू, क्या हाल हैं आपके, वॉट अ प्लेजर दिस इज़, यू डू हैव एन इंटरेस्टिंग नेम डोंट यू, और फिर उसे कहा कि आपका नाम, यू हैव एन इंटरेस्टिंग नेम डोंट यू, आपको नहीं लगता। उन्होंने वरूका से कहा हाउ डू यू डू, उसकी खैरियत पूछी, व्हाट अ प्लेजर दिस इज़, यू डू हैव एन इंटरेस्टिंग नेम डोंट यू, फिर उसे कहा कि आपका नाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको नहीं लगता। I always thought that a Varuka was a sort of what that you got on the sole of your foot, but I must be wrong, mustn't it? फिर उन्होंने वरूका से कहा कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वरूका जो है वो एक टाइप का एक मार्क है या एक वूंड है जो कि आपके फुट पे होता है, बट आई मस्ट बी रॉन्ग, लेकिन मैं रॉन्ग था, mustn't it, बिल्कुल रॉन्ग था मैं। How pretty your look in that lovely mink coat, और फिर उसके मिंक कोट, उसने जो कोट पहना हुआ था उसकी तारीफ़ की। आई एम सो ग्लैड यू कुड कम, और उसे कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए। डियर मी, दिस इज़ गोइंग टू बी सच एन एक्साइटिंग डे, आई डू होप यू enjoy it, आई एम श्योर यू विल, I know you will. Your father, how are you, Mr. Salt and Mrs. Salt? Overjoyed to see you. Yes. The tickets is quite in order. Please go in. उनसे नाम पूछने के बाद, उसकी तारीफ़ करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और फिर उन्हें इनकरेज किया कि ये आपका बहुत एक्साइटिंग डे होगा, आपको यहाँ बहुत इन्जॉय करेंगे, आई एम श्योर यू विल इन्जॉय योर डे, आपको यहाँ बहुत मज़ा आएगा। देन ही ग्रीट्स विद हिज फादर एंड हिज मदर, उन दोनों से मिले और उनसे भी मिलके उन्हें बहुत खुशी हुई, और देन ही जो है उनका टिकट उनको देख कर और फिर उनको अलाउ किया कि यू गो इन, के प्लीज़ आप अंदर चले जाएं। ओके, द नेक्स्ट टू चिल्ड्रन, अब अगले जो दो बच्चे थे, वॉयलेट, ओके, द नेक्स्ट टू चिल्ड्रंस, वॉयलेट ब्यूरीग्रेट एंड माइक टेवी, क्या नाम था, वॉयलेट ब्यूरीग्रेट एंड माइक टेवी, केम फॉरवर्ड टू हैव देयर टिकट्स examined and then to have their arms practically pumped off their shoulders by the energetic Mr. Wonka। फिर दो बच्चे आगे आए जिनका नाम था वॉयलेट ब्यूरीग्रेट एंड माइक टेवी, आगे आए टू हैव देयर टिकट्स, उन्होंने भी अपने टिकट्स शो किए, उन्होंने भी अपने आर्म स्प्रेड करके मिले मिस्टर वोंका से, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन थे। एंड लास्ट ऑफ ऑल, सबसे लास्ट में, अ स्मॉल नर्वस वॉइस विस्पर्ड, लास्ट ऑफ ऑल अ स्मॉल, एक छोटी सी नर्वस घबराई हुई सी वॉइस, आवाज़ आई, विस्पर्ड हुई यानी कि आराम से हल्की सी आवाज़ आई, चार्ली बकेट, क्या नाम था उस बच्चे का, लास्ट बॉय का, चार्ली बकेट, यू विल रिपीट विद मी, चार्ली बकेट, यस दिस इज़ द लास्ट बॉय, चार्ली क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका ने उसको मुखातिब करते हुए कहा, चार्ली, वेल वेल वेल, सो देयर यू आर, आप हैं, यू आर द वन हु फाउंड योर टिकट ओनली येस्टरडे, आप वो हैं जिन्हें अपना टिकट मिला था येस्टरडे यानी कि एक दिन पहले, आरंट यू
क्या उन्होंने पूछा, वाकई आप ही हैं वो? यस, आई रीड ऑल अबाउट इट इन दिस मॉर्निंग्स पेपर जस्ट इन टाइम माई डियर बॉय। उन्होंने क्या कहा कि मैंने आपके बारे में मॉर्निंग पेपर में पढ़ा था। माई डियर बॉय, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। सो हैप्पी फॉर यू, एंड मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, खुश हूँ। एंड दिस योर ग्रैंड फादर डिलाइटेड टू मीट यू, और उनके साथ कौन आए थे, उसके ग्रैंड फादर आए थे। डिलाइटेड टू मीट यू सर, ओवरजॉयड, उन्होंने कहा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर, और खुशी का इजहार किया। ओवरजॉयड, इनरैप्चर्ड, एन्चेंटेड, ये जो तीनों वर्ड्स हैं बच्चों, प्यारे डियर स्टूडेंट्स, ओवरजॉयड, इनरैप्चर्ड एंड एन्चेंटेड, दीज आर ऑल यूज फॉर इन हैप्पीनेस, खुशी में जो है वो दीज वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये वाले वर्ड्स। ओके, ऑल राइट, एक्सेलेंट, इज़ एवरीबडी इन नाउ। अब फिर उन्होंने क्या पूछा मिस्टर वोंका ने कि क्या आप सब आ चुके हैं? 5 चिल्ड्रन, फिर उन्होंने सवाल करते हुए कि 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन, यस, गुड। नाउ विल यू प्लीज़ फॉलो मी, फिर उन्होंने उन्हें कहा कि क्या आप मुझे फॉलो करेंगे, आप मेरे पीछे आएंगे। आर टूर इज़ अबाउट टू बिगिन, हमारा टूर स्टार्ट होने वाला है। बट डू कीप टुगेदर, लेकिन आप लोगों ने एक साथ मिल के रहना है। ओके, यहाँ वहाँ नहीं जाना। प्लीज़ डोंट वेंडर ऑफ बाई योर सेल्फ, अपनी मर्ज़ी से वेंडर ऑफ यानी कि मूव नहीं करना, वॉक नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से यहाँ वहाँ आपने नहीं जाना। आई शुडेंट लाइक टू लूज़ एनी ऑफ यू एट दिस स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, ओह डियर मी नो, मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी बच्चा यहाँ वहाँ हो हमारे इस टूर में, इस इवेंट में। ओके, डियर करके उन्होंने उन सबको ये बताया कि आपने यहाँ वहाँ कहीं मूव नहीं करना, मेरे साथ साथ रहना है, मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी मिसप्लेस हो इस इवेंट पे या इस टूर पे। चार्ली ग्लैंस बैक ओवर हिज शोल्डर, चार्ली जो बच्चा था ग्लैंस यानी कि उसने देखा, बैक ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर के ऊपर से। ही सॉ द ग्रेट आयरन एंट्रेंस गेट, उसने क्या देखा, उसने देखा वही बहुत बड़ा वाला जो आयरन गेट था जहाँ से वो एंटर हुए थे। स्लोली क्लोजिंग बिहाइंड हिम, वो क्या हो रहा था, आहिस्ते आहिस्ते खुद ब खुद बंद हो रहा था, जो कि उसके पीछे था। बिहाइंड हिम यानी कि उसके पीछे था। द क्राउड्स ऑन द आउटसाइड, द क्राउड्स ऑन द आउटसाइड वर स्टिल पुशिंग एंड शाउटिंग, और उस गेट के पीछे जो भी लोग थे, जो भी क्राउड था, वो स्टिल अभी भी दरवाजे इस गेट को पुश कर रहे थे और शाउट कर रहे थे। पुशिंग एंड शाउटिंग, द क्राउड्स ऑन द आउटसाइड वर स्टिल पुशिंग एंड शाउटिंग। चार्ली टुक अ लास्ट लुक एट देम, चार्ली ने लास्ट टाइम उनको देखा। देन एज द गेट क्लोज्ड, और जैसे ही गेट बंद हुआ, विद अ क्लैंग, एक ऐसी वाइब्रेशन हुई, एक ऐसी आवाज़ आई उसमें से, ऑल साइट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड डिसअपीयर्ड, और अचानक उसने क्या देखा कि जैसे ही गेट बंद हुआ, बाहर जो भी उसको साइड दिख रहा था, जो भी उसको नज़ारा दिख रहा था, वो वर्ल्ड का वो अचानक से क्या हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया। डिसअपीयर्ड यानी कि गायब हो गया, वैनिश्ड हो गया। ओके, हियर वी आर क्राइड मिस्टर वोंका, फिर मिस्टर वोंका ने उन्हें मुखातिब करके कहा कि हम यहाँ हैं। हियर वी आर ट्रॉटिंग अलोंग इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप, और वो ग्रुप के लीडर थे, वो एक उनको जो है वो लीड कर रहे थे, तो उन्हें मुखातिब करते हुए उनसे कहा कि हियर वी आर, पूरे ग्रुप से। थ्रू दिस बिग रेड डोर प्लीज़, दैट्स राइट, it's nice and warm inside. I have to keep it warm inside the factory because of the workers. My workers are used to an extremely, we will continue on the next page. पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। Here we are, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं अपने ग्रुप को लीड करते हुए। Then through this बिग रेड डोर, एक रेड डोर को क्रॉस करते हुए जब वो गए तो उन्होंने कहा दैट्स राइट, इट्स नाइस, वहाँ का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। एंड वार्म इनसाइड, मतलब वार्म मतलब वहाँ थोड़ी सी गर्म सा माहौल मतलब है, वहाँ ठंड नहीं है। इट्स वार्म इनसाइड।
आई हैव टू कीप इट, और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का एटमॉस्फेयर वार्म रखना पड़ता है इनसाइड द फैक्ट्री, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन क्योंकि ऑफ द वर्कर्स, क्योंकि मेरे वर्कर्स की वजह से, माई वर्कर्स आर यूज टू एन एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट, मतलब मेरे जो वर्कर्स हैं वो एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट में उन्हें काम करने की आदत है। दे कांट स्टैंड द कोल्ड, वो ठंड में सर्द काम नहीं कर सकते, खड़े नहीं रह सकते। दे पैरिश इफ दे वेंट आउटडोर इन दिस वेदर, दे फ्रीज टू डेथ, अगर उन्हें इस एटमॉस्फेयर से मैं बाहर निकालूंगा, वो इतने ज़्यादा यूज टू हो गए हैं तो वो जो है नहीं रह सकेंगे, डाई हो जाएंगे, वो परसिस्ट नहीं कर सकेंगे अगर मैं उन्हें बाहर की तरफ ले गया, बिकॉज बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग है, बहुत ठंड है, और वो इस फ्रेज में क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट हु आर दीज वर्कर्स, आस्क अगस्टस ग्लूप। फिर क्या हुआ, अगस्टस ग्लूप ने एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? बट हु आर दीज वर्कर्स, ये वर्कर्स कौन हैं? ऑल इन गुड टाइम माई डियर बॉय, सेड मिस्टर वोंका, स्माइलिंग एट अगस्टस। मिस्टर वोंका ने अगस्टस की तरफ स्माइल करते हुए उन्हें कहा कि ऑल इन अ गुड टाइम, ये बहुत अच्छे टाइम पे हैं, बहुत अच्छे कंडीशन में हैं माई डियर बॉय। बी पेशेंट, बी पेशेंट, यू शैल सी एवरीथिंग एज वी गो अलॉन्ग, और तुम्हें सब बातें पता चल जाएंगी, तुम्हें सब मालूमात हो जाएगी जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे। आर ऑल ऑफ यू इनसाइड, फिर उन्होंने पूछा कि क्या सब अंदर आ गए हैं? आर ऑल ऑफ यू इनसाइड, क्या सब अंदर आ गए हैं? गुड। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, फिर उन्होंने एक और सवाल करते हुए कहा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर डोर बंद कर दें? वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, कि डोर को बंद कर दें? थैंक यू। चार्ली बकेट फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग कॉरिडोर, चार्ली बकेट ने अपने आप को, वो कहाँ खड़ा था, उसने देखा कि वो खड़ा है इन अ लॉन्ग कॉरिडोर, एक बहुत ही बड़े कॉरिडोर में, दैट स्ट्रेच्ड अवे इन फ्रंट ऑफ हिम एज फार एज ही कुड सी, और वो इतना बड़ा था कि वो उसे सामने देखा जा रहा था, देखता जा रहा था, लेकिन वो कॉरिडोर ख़त्म नहीं हो रहा था दूर दूर तक। द कॉरिडोर वॉज सो वाइड, बहुत ही बड़ा था, दैट अ कार कुड ईजली हैव बीन ड्राइविंग अलॉन्ग इट, और वो इतना बड़ा था कि उसमें एक कार आराम से जो है वो ड्राइव कर सकती थी ईजिली। द वॉल्स वर पेल पिंक, द वॉल्स, वॉल्स किसे कहते हैं? दीवारों को। द वॉल्स वर पेल पिंक, क्या कलर था उसका? पिंक कलर था, लेकिन जो कि वो थोड़ा पेल पड़ चुका था, थोड़ा वो जो है वो डल हो गया था, पेल पिंक। द लाइटनिंग वॉज सॉफ्ट, वहाँ की जो लाइट्स थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। द वॉल्स वर पेल पिंक, द लाइटनिंग वॉज सॉफ्ट एंड प्लीजेंट। वॉल्स मैंने जैसे आपको बताया बहुत पेल पिंक टाइप की थी, और वहाँ की जो लाइट थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत ज़्यादा प्लेजेंट थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और खुशगवार थी। हाउ लवली एंड वॉर्म, विस्पर्ड चार्ली, चार्ली ने आहिस्ता से आवाज़ में कहा कि कितना अच्छा और वार्म माहौल है, लवली और वार्म एटमॉस्फेयर है। आई नो, एंड वॉट अ मार्वलस स्मेल, आंसर ग्रैंडपा जोय, तो ग्रैंडपा जोय ने उसका आंसर करते हुए कहा कि येस आई नो, एंड व्हाट अ मार्वलस स्मेल, स्मेल कहते हैं खुशबू को, मार्वलस बहुत ही ज़बरदस्त, और क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये किसने कहा था? ग्रैंडपा जो। टेकिंग अ लॉन्ग डीप स्निफ, और एक गहरी सांस लेते हुए, सूंघते हुए उन्होंने ये कहा कि वाओ व्हाट अ लवली स्मेल, व्हाट अ मार्वलस स्मेल। All the most wonderful smells in the world seem to be mixed up in the air around them, और उन्होंने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? ऐसा लगता है कि दुनिया की, वर्ल्ड की तमाम जो वंडरफुल स्मेल्स हैं वो एक जगह मिक्स हो गई हैं इन द एयर में, अराउंड देम, इस एटमॉस्फेयर में। द स्मेल ऑफ, अब उन्हें क्या क्या स्मेल्स आ रही थी? द स्मेल ऑफ रोस्टिंग कॉफ़ी, जैसे कि कोई कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट कर रहा है, द स्मेल ऑफ रोस्टिंग कॉफ़ी एंड बर्न शुगर, और जैसे कोई शुगर को कैरेमलाइज कर रहा है, बर्न कर रहा है, बर्न मतलब जलाना नहीं है यहाँ पे, जब हम
कैरमल बनाते हैं तो शुगर को जो हम लाइट फ्लेम पे बर्न करते हैं ताकि उसकी जो मार्वलस सी एक स्मेल निकलती है कैरमल की, तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ एक रोस्टिंग कॉफ़ी की खुशबू है, यहाँ बर्न शुगर, कैरमलाइज शुगर की खुशबू है, एंड मेल्टिंग चॉकलेट, और जैसे कि कोई चॉकलेट को मेल्ट कर रहा है, एंड मिंट, और मिंट की, एंड वॉयलेट्स एंड क्रश्ड हेज़लनट्स, और उन्होंने क्या स्मेल्स आ रही थी वहाँ, मिंट की खुशबू आ रही थी, मिंट जो पेपरमिंट होता है, और वॉयलेट्स फ्लावर्स की, एंड क्रश्ड हेज़लनट्स, और जैसे कि कोई हेज़लनट क्रश करते हैं जब, और उसकी जो स्मेल आती है, दिस इज़ अ वेरी लवली स्मेल ऑफ क्रश्ड हेज़लनट्स, एंड एप्पल ब्लॉसम्स एंड कैरमल, और एप्पल की जो एक ब्लॉसम आ रही है खुशबू, एंड कैरमल की खुशबू आ रही है, एंड लेमन पील, और उनको क्या लास्ट क्या खुशबू आ रही थी, एंड अ लेमन पील, जैसे कि लेमन का जो पील जो करते हैं उसको, जो छिलके की जो एक सार सी स्मेल आती है ना, तो ही फील्स, अलग अलग टाइप की उनको ये स्मेल्स आ रही थी। आई विल रिपीट कौन कौन सी स्मेल्स आ रही थी उनको, द स्मेल ऑफ रोस्टिंग कॉफ़ी एंड बर्न्ड शुगर एंड मेल्टिंग चॉकलेट and mint and violets and crushed hazelnuts and apple blossoms and caramel and lemon peel, ये सारी जो है इनको स्मेल आ रही थी जिन्हें वो फील कर रहे थे, स्निफ कर रहे थे, और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था इन जो है इनको ये सारी जो है स्मेल से बहुत अच्छा उन्हें फील हो रहा था उस एटमॉस्फेयर में। एंड फार अवे इन द डिस्टेंस, and far away in the distance, from the heart of the great factory, came a muffled roar of energy, as though some monstrous gigantic machine was spinning its wheel at breakneck speed. Okay students, I'll explain you the last paragraph. एंड फार अवे इन द डिस्टेंस, और बहुत दूर से उन्हें डिस्टेंस से, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द ग्रेट फैक्ट्री, जो कि फैक्ट्री का बिल्कुल मेन पार्ट था, बहुत जो मेन उसका जो एरिया था, वहाँ से उन्हें केम अ मफल्ड रोअर, मफल्ड किसे कहते हैं, बहुत हल्की सी आवाज़ उन्हें, एक नॉट क्लियर या क्वाइटर या रिड्यूस साउंड जो है उन्हें सुनाई दे रहा था, ऑफ एनर्जी, एज दो, जैसे कि सम मॉन्स्ट्रस जिजेंटिक, मॉन्स्ट्रस जिजेंटिक मीन्स, मॉन्स्ट्रस कहते हैं बहुत ह्यूज, इनॉर्मस, जिजेंटिक बहुत बड़ा, मॉन्स्ट्रस एंड जिजेंटिक आर द सिनोनिम्स। तो मॉन्स्ट्रस जिजेंटिक मीन्स बहुत ह्यूज, बहुत इनॉर्मस मशीन चल रहा हो, वर स्पिनिंग, बहुत बड़ा मशीन, वर स्पिनिंग चल रही हूँ, वर बहुत सारे मशीन चल रहे हैं, इट्स व्हील एट ब्रेकनेक स्पीड, और जिनकी जो व्हील्स हैं उनकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्पीड पे वो मशीन काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा ये फील हुआ। ओके, आई विल रिपीट द लास्ट पैराग्राफ फॉर यू। एंड फार अवे इन द डिस्टेंस, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द ग्रेट फैक्ट्री, केम अ मफल्ड roar of energy, as though some monstrous gigantic machine were spinning its wheel at breakneck speed, breakneck speed यानी कि बहुत हाई स्पीड। तो ये था उस फैक्ट्री के अंदर जाके उन्हें क्या लगा, उन्होंने क्या फ़ील किया, किस तरह का एटमॉस्फेयर था, कैसी लाइटनिंग थी, कैसे वहाँ पे जो है वो स्मेल आ रही थी, फिर उन्हें कैसी आवाज़ें सुनाई दी, किस तरह के मशीन्स, और ये सारा जो है वो अंदर का उन्होंने किस तरह की फीलिंग्स आई उनको जाके, बच्चों को और उनके जो पेरेंट्स या जो भी ग्रैंड पेरेंट्स थे अंदर, तो उन्होंने किस तरह वो फील किया, ये इस तरह वो आपको डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में, कि उन्हें फैक्ट्री के अंदर जा के वो किस तरह उन्होंने फ़ील किया और उन्हें क्या जो है वो वहाँ पे मज़ा आया, या जो भी उन्होंने चीज़ें देखी वो सब कुछ डिस्क्राइब किया गया, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे स्मेल की, कैसा कलर था, कैसे जो है वहाँ पे उसकी लाइटनिंग थी, वो सब जो है इसमें लास्ट में 2 पैराग्राफ्स में आपको डिफ़ाइन किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, होप यू ऑल एन्जॉय दिस स्टोरी, होप यू ऑल विल लर्न the main words, the new words in these sentences, and hope you will read this chapter thoroughly 2 or 3 times at your home to improve your reading skills.
Now students, after reading and explanation, we will come to some written work. Okay, so this is the exercise in your book, page number 122. Exercise A. Match the following words taking from the passage with their meanings. ये word के meanings आपको book में ही करने हैं. You have to do your word meanings, matching of your word meanings in your book. ये आपको अपनी copy में नहीं करना. You have to do this exercise in your book. Okay? So please take out your pencil and your ruler. Scale लेंगे, अपनी pencil लेंगे और उसकी मदद से you have to join the words with their correct meanings. Okay, we will start with the first word, extraordinary. Extraordinary का मीन है, आप इसको मैच करेंगे I से. Extraordinary means surprising and strange, not ordinary. Extraordinary मतलब कोई ख़ास चीज़ जो ordinary ना हो. Okay, नंबर 2 है sharp. Sharp को आप मैच करेंगे F से, यानी कि clever, quick witted. Sharp यानी कि clever. नाउ नंबर 3 टेरिफिक. टेरिफिक को आप मैच करेंगे H, वेरी ग्रेट, एक्सिसिव. टेरिफिक यानी कि अमेजिंग, वेरी ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त. नंबर 4 नर्वस. नर्वस मी को आप मैच करेंगे A, टिमिड, एंक्शियस. नर्वस हो जाना, एंक्शियस हो जाना, घबरा जाना. ओके. नंबर 5 इनरैप्चर्ड. इनरैप्चर्ड you will match with be greatly delighted, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, enraptured. Number 6 enchanted. Enchanted you will match with D, charmed. Enchanted, charmed. Okay, बहुत अच्छा फील करना, charming फील करना. Number 7 perish. Perish you will join with die. Perish means die हो जाना, death हो जाना. नंबर 8 मफल्ड. मफल्ड को आप किससे ज्वाइन करेंगे? लास्ट J1. नॉट हर्ड क्लियरली, अच्छी तरीके से सुनाई ना दे. मेड क्वाइटर विद रिड्यूस वॉल्यूम, बहुत हल्की आवाज़ हो जो आपको अच्छी तरीके से सुनाई ना दे. नंबर 9 मॉन्स्ट्रस. मॉन्स्ट्रस एज आई टोल्ड यू दिस वन, द मॉन्स्ट्रस. मॉन्स्ट्रस मीन्स ह्यूज, इनॉर्मस. मॉन्स्ट्रस का क्या मीनिंग है? इसको आप मैच करेंगे ई से, ह्यूज, इनॉर्मस. ओके, बहुत ही बड़ा, बहुत ही जो है जाइंट या जिजेंटिक. एंड द लास्ट वन ब्रेकनेक. ब्रेकनेक कहते हैं हम, इसको आप मैच करेंगे सबसे पहले किससे? जी. हेडलॉन्ग एट ग्रेट स्पीड, बहुत ज़्यादा. ब्रेकनेक यानी कि बग़ैर रुके, विद अ वेरी हाई स्पीड. हेडलॉन्ग एट ग्रेट स्पीड. ओके, सो प्लीज़ join these words with their correct meanings with the help of your pencil and your ruler very neatly, very clearly with the date mentioned here. Okay, and इसके बाद जो है students you will do your question answers. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसकी पिक्चर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी. तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन आंसर्स. दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स. वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. तो अब आपने क्या करना है? आपने वो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अपनी कॉपी में करने हैं. अगेन आई विल रिपीट, प्लीज़ ध्यान से सुने. वर्ड मीनिंग्स ये जो हैं ये आपने बुक में करने हैं और क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको अपनी इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी में आप सबसे पहले अपना जो है वो टाइटल पेज बनाएंगे टर्म 2 का. देन आपने क्या करना है? चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है. सबसे पहले आपने टर्म 2 का टाइटल पेज बनाना है. देन आपने चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही नीटली. देन इसके बाद आप डेट एंड डे के साथ क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालेंगे. फिर आप ब्लू कलर से क्वेश्चन कॉपी करेंगे और पेंसिल से आंसर लिखेंगे बहुत ही नीटली. सारा काम आपने सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही नीटली अपनी कॉपी में करने हैं और बहुत नीट काम आपका होना चाहिए. और वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो आपने बुक में करने हैं. ओके, सो होप यू ऑल विल do your written work very neatly in your copy and in your book.